Good morning, children. Today we will discuss about the fundamental of human geography, chapter first, nature and scope. If we are talking about the human geography is related to the human plus geography. Humans are dependent on the nature, and nature is also dependent on the humans. They are affected by the humans. So that is called the human geography. We will talk about the nature and scope. The first thing is, two type of nature is there. It means two major components in human geography. Two major components in geography. The first is related to the nature. Nature is related to the physical environment. Nature means physical environments. They are related to the physical environment. And life forms including human beings. Or second part is the life forms including human beings. It means human activity is there. So human component of your surroundings, physical geography study physical environment, and human geography study the relationship between the physical, natural and the human worlds, the spatial distribution of human phenomena and how they come about, the social and economic differences between different parts of the world. So there is a two type of geography, physical geography. In physical geography is related to the physical environment, and the other is human geography. Human geography studies the relationship between the human and the earth. That is called the human geography. This is a geography is a discipline. It means the earth has make many rules. They are follow the many rules, and humans is also follow the many rules. So this is a discipline. Study all the elements they are related to the humans and the geography. Emphasis is on study of nature and human beings. There are two disciplines is there. In geography, there are two disciplines is there. The first discipline is called the law making or theorizing. It means they are related to the theories. And the persons are called नॉमोथेटिक. ऐसे लोग जो थ्योरीज देते हैं या लॉ मेकिंग करते हैं, दे आर कॉल्ड द नॉमोथेटिक. उनको नॉमोथेटिक कहा जाता है. एंड सेकेंड डिसिप्लिन इज रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्टिव, एंड द पर्सन्स आर कॉल्ड आइडोग्राफिक. ऐसे लोगों को कहा जाता है आइडोग्राफिक. इसमें ज्योग्राफी में आपके दो डिसिप्लिन्स होती हैं, दो ब्रांचेस देयर, एंड फर्स्ट ब्रांच इज लॉ मेकिंग और थ्योरिजिंग. द पर्सन इज ऑल्सो कॉल्ड द नॉमोथेटिक, एंड सेकेंड इज कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव आइडोग्राफिक. एंड ऑर्गेनाइज्ड एन अप्रोच ऑफ द स्टडी. ऑर्गेनाइज्ड एन अप्रोच ऑफ द स्टडी. ज्योग्राफी आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. दो पार्ट में फिर डिवाइड करते हैं हम इसको. द फर्स्ट इज रीजनल एंड सेकेंड इज सिस्टमैटिक. टू टाइप ऑफ ज्योग्राफी इज देयर. फर्स्ट इज रीजनल एंड सेकेंड इज सिस्टमैटिक. एंड दिस डिवाइडेशन इज बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अप्रोच ऑफ द स्टडी. रीजनल मैथड यूज इन ओनली ज्योग्राफी. ये ऐसा मेथड है जो केवल ज्योग्राफी में ही यूज़ में आता है. बिकॉज ज्योग्राफी इज़ नॉट रिलेटेड टू पर्टिकुलर एरिया. एक पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड नहीं होता, तो हम एक रीजन्स की बात करते हैं इसमें. सो दिस मेथड इज़ यूज ओनली इन ज्योग्राफी. एंड अदर पार्ट we will talk about the different kinds of definitions. ह्यूमन ज्योग्राफी में कुछ जो है डेफिनेशंस आपकी दी हुई है.
ठीक है। द फर्स्ट डेफिनेशन इज रिलेटेड टू द रेड्जेल। रेड्जेल की डेफिनेशन से कि व्हाट इज ज्योग्राफी। तो रेड्जेल क्या बोलता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिस्टमेटिक स्टडी। दे आर फोकस ऑन द सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक फोकस किया है। द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस किसके बीच में रिलेशन बताया इन्होंने, रेड्जेल ने, कि ह्यूमन सोसाइटीज़ और अर्थ सरफेस के बीच में जो रिलेशनशिप है, पर वो रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, सिंथेटिक स्टडीज़ उसकी होनी चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड द ह्यूमन ज्योग्राफी। हम उसको ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। सो सिंथेसाइज हैज़ बीन एम्फेसाइज इन द अबव डेफिनेशंस। इसमें इसके ऊपर फोकस किया है। सेकंड जो है वह एलन सी सैम्पल्स की डेफिनेशन है। एलन सी सैम्पल्स क्या बोलती है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन, ऐसी रिलेशनशिप जिसमें चेंजेस होते रहते हैं हमेशा, किसके बीच में, द अनरस्टिंग मैन। अनरस्टिंग मतलब जिसके माइंड का पता नहीं है कि वो क्या करेगा अभी, अनरस्टिंग, रेस्ट नहीं करता जो, एंड द अनस्टेबल अर्थ। अनस्टेबल अर्थ, स्टेबिलिटी अर्थ में है ही नहीं, किसी भी कंडीशंस में कहीं पर भी कुछ भी चेंजेस हो जाता है अर्थ में। तो दो कंडीशंस हैं कि अनरेस्टिंग मैन, जो रेस्ट नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहता है उसके माइंड के अकॉर्डिंग, और सेकंड इज अनस्टेबल अर्थ। सो एलन सी सैम्पल इज टोल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। नेक्स्ट डेफिनेशंस की बात करें, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द डायनेमिज्म। एलन सी सैम्पल में जो रिलेशनशिप बताई है दैट इज कॉल्ड द डायनेमिज्म। इसको डायनेमिज्म कहते हैं। थर्ड डेफिनेशन इज रिलेटेड टू पॉल विडाल डी ला ब्लश। Conceptual resulting from a more synthetic knowledge of the physical laws governing our earth। हमारी जो अर्थ है वो कुछ बायलॉज को फॉलो करती है हमेशा, हमें उसकी नॉलेज एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग बींग्स, और जितने चीज़ें लिविंग बींग्स में यहाँ हैं उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप हम देख रहे हैं, विच इनहैबिट इन, जो यहाँ रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द ह्यूमन ज्योग्राफी। उसे उन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी कहा विडाल डी ला ब्लश में। सो दे आर फोकस ऑन इंटर रिलेशनशिप। इस डेफिनेशंस को अगर हम देखते हैं तो उन्होंने ये कहा कि ह्यूमन बींग्स और जो अर्थ के बीच में रिलेशनशिप है, इंटर रिलेशनशिप, दैट इज़ कॉल्ड द ह्यूमन ज्योग्राफी। उसे हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। अब बात करते हैं इसमें नेचुरलाइजेशंस ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशंस ऑफ नेचर। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। एक ह्यूमन जो होता है वो हमेशा इंटरेक्ट होता है अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से। एंड रिसेंटली बात करें कुछ टाइम ड्यूरेशंस की, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट ह्यूमन बीइंग्स प्रोड्यूस और क्रिएट, बट इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट विद द हेल्प ऑफ व्हाट टूल्स एंड टेक्निक्स डू दे प्रोड्यूस एंड क्रिएट। ह्यूमंस जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, वो टेक्नोलॉजी प्लस जो टूल और टेक्निक्स वो यूज़ कर रहा है, उसके इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम ये पढ़ते हैं कि बाय नेचर हमें बहुत सारी चीज़ें दी है इस अर्थ में, हम उस नेचर को कैसे यूज़ में लेते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि किस तरीके के टूल्स हम यूज़ करते हैं, किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी क्या इंडिकेट करती है हमारी, टेक्नोलॉजी इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। हमारी सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है उसको कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है। ह्यूमन बीइंग्स वर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी आफ्टर दे डेवलप्ड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉज। और टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हमें ये समझ होती है कि नेचुरल बायलॉज क्या होते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम नेचर को यूज़ करना चाहते हैं, हम यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, पर एक लिमिटेशंस में वो यूज़ होता है।
उस लिमिटेशंस के बाद में नेचर अपने आप को बैलेंस करना चाहती है कहीं ना कहीं, क्योंकि अनबैलेंस होगी नेचर, आप उसको अनबैलेंस कर रहे हो टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो वो बैलेंस करती है अपने आप को। तो बायोलॉजी इज देयर कि कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो फॉलो करती है वो। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शंस एंड हीट डेवलप अस डिस्कवर फायर, जैसे इस तरीके की जो चीज़ें फायर्स वगैरह हैं वो फ्रिक्शंस के थ्रू और हीट के थ्रू हमने जनरेट की ह्यूमंस ने। और इसी तरह का अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सीक्रेट ऑफ डीएनए एंड जेनेटिक्स, ऐसे हमने धीरे धीरे डिजीज़ के बारे में, डीएनए के बारे में टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने उन चीज़ों को जाना है। तो हमारी नॉलेज जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होती है, प्योर भी होती है। नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर क्या है इसका ह्यूमन ज्योग्राफी का? नेचर की अगर हम बात करें, दे आर इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इन्वायरमेंट एंड सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट इज और नेचर ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी का जो नेचर है वो बेस है फिजिकल इन्वायरमेंट के ऊपर एंड सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट के ऊपर, बिकॉज दे क्रिएट द ह्यूमंस, इसको ह्यूमंस क्रिएट करते हैं बाय ह्यूमन बीइंग्स थ्रू म्यूचुअल इंटरेक्शंस विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशंस करते हुए। एक ह्यूमंस जो है वो ह्यूमंस के साथ में या उसके सोसाइटी के साथ कोऑर्डिनेशन करता है किसी